Good morning, students. I am Anuradha Rajput, your EVS teacher, and today I will teach you chapter number 16. Who will do this work? कौन करेगा यह काम? जैसा कि हम पिक्चर में देख सकते हैं, आपको बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे होंगे जो साफ सफाई का काम करते हुए, क्लीनिंग जॉब्स करते हुए आपको दिख रहे हैं, जैसे चैम्बर साफ करना, स्वीपिंग करना, गार्बेज उठाना। तो ये सारे जो वर्क हैं वो डर्टी वर्क माने जाते हैं। बट कभी आपने ऐसा सोचा है कि हैव यू एवर थॉट ऑफ पीपल हु डू दिस वर्क? व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द प्लेस क्लीन? व्हाई डू यू थिंक पीपल नीड टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क? And what would happen if nobody did this work? If nobody cleared the garbage lying outside your school or your house for 1 week, then what would happen? तो इस चैप्टर में इन्हीं लोगों के बारे में बताया गया है और इससे जुड़े जो क्वेश्चन हैं हम उनको भी समझते जाएंगे। जैसे लोगों को ऐसे काम क्यों करने पड़ते हैं, अगर वो ये काम करते हैं तो उन्हें कैसा लगता होगा, और अगर ये लोग ये सारे काम ना करें तो क्या होगा। तो लेट्स स्टार्ट। Our friend spoke to some staff who do cleaning jobs. Here are some of the things they told us. हमारे साथियों ने कुछ सफाई कामगारों से बातचीत की और यहाँ हम उसी के बारे में बता रहे हैं। Since when have you been doing this work? About 20 years since I complete my studies. आप कब से यह काम कर रही हैं? करीबन 20 साल से, जब से पढ़ाई खत्म हुई है। Why did you not study further? You could have got some other job. You need money for studies, and even after that most of our people continue to do this kind of work. आगे क्यों नहीं पढ़ी? कुछ और काम मिल जाता। पढ़ने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है और वैसे भी पढ़कर हमारे कई लोग ऐसा ही काम करते हैं। What do you mean? मतलब since our great grandfathers times or even before that most people of our community have been doing this work even after getting a college degree. Our people do not get any other kind of job, so they have to do this work. बाप दादाओं से, उनसे भी पहले हमारे समाज में ज़्यादातर लोग यह काम कर रहे हैं। डिग्री लेकर भी दूसरी नौकरी नहीं मिलती तो यही काम करते हैं। Why is that so? ऐसा क्यों? That is the way it is in the entire city. All the people who do this kind of work are from our community. It has always been so. ऐसा ही है हमारे पूरे शहर में। यह काम करने वाले सभी लोग हमारे ही समाज के हैं। हमेशा से ऐसा ही होता आया है। One such person was Mahatma Gandhi. Gandhiji had a friend, Mahadev Bhai Desai. Mahadev Bhai's son Narayan also stayed with Gandhiji when he was young. This incident is from Narayan's book, Remembering Those Days. When Narayan Bawla was about 11 years old, he was staying in Gandhiji's Sabarmati ashram. He, like everyone else in the ashram, he had to do various kinds of work. One of his job was to teach the guests how to clean the toilets. In those days, the toilets were not what we know today. There used to be holes under which baskets were kept. People sat on the holes. Later, the basket had to be lifted by hand to be emptied. It was the usual practice that people from a particular community would do this work, but in Gandhiji's ashram, every person had to carry the basket to the compost pit and empty it there. No one was excused from this task, not even the guest.
Narayan Bhai remembers how some people used to try and avoid this work. Some even left the ashram because of this. Some years later, Gandhiji went to stay at a village near Wardha in Maharashtra. Gandhiji, Mahadev Bhai, and others started to clean the toilets in the village. They did this for some months. One morning, a man coming from the toilet saw Mahadev Bhai. He pointed to him and said, "There is a lot of dirt over there. Go and clean that." When Babla saw this, he was very angry. He thought the villagers felt that this was not their work. This was for Gandhiji and his team to do. He asked Gandhiji why this was so. Gandhiji replied, "Untouchability is a serious matter. Lot of hard work will be required to change this." Narayan knew that the people who usually did this work were thought to be untouchable. He asked, "What is the use if the village people do not change their thinking? They have become used to someone else doing this work for them." Gandhiji replied, "Why? Don't you think the people who clean also benefit from it? They also learn a lesson. To learn something is like learning a new skill, even if it is a cleaning job." Little Narayan was not convinced. He again argued, "Those who make a place dirty but do not clean it should also learn lesson." Gandhiji and Narayan continued to argue about this, but when he grew up, Narayan always followed the path shown by Gandhiji. ये जो अ, बातचीत बताई गई है ये नारायण और गांधी जी के बीच की है और ये उसी टाइम की घटना है जब वो साबरमती आश्रम में रहते थे। नारायण यानी बावला जब 11 साल के थे तब गुजरात के साबरमती आश्रम में उन्हें अलग अलग काम करने पड़ते थे। उनमें से एक था आने वाले मेहमानों को टॉयलेट की सफाई का काम सिखाना। तब की टॉयलेट में नीचे टोकरियां रखी होती थी जिनमें संडास की गंदगी गिरती थी, फिर उस जगह को साफ भी करना पड़ता था और इन टोकरियों को हाथों से उठाकर ले जाना होता था। आमतौर पर इस काम को एक ही समाज के लोगों को ही करना पड़ता, पर गांधी आश्रम में खाद बनाने वाले गड्ढे तक टोकरियां ले जाने का यह काम सभी को करना पड़ता था, फिर वह कोई भी क्यों ना हो। नारायण को याद है कि कई लोग इस काम को टालने की कोशिश करते थे। कुछ तो इस काम से डरकर आश्रम छोड़कर भाग जाते। एक बार गांधी जी महाराष्ट्र के वर्धा शहर के पास एक गांव में रहने गए। यह गांव था तो वर्धा शहर के पास, लेकिन फिर भी शहर की सुविधाओं से परे था। गांव में गांधी जी, महादेव भाई और उनके साथी टॉयलेट की सफाई का काम करने लगे। कई महीने बीत गए। एक दिन सुबह के समय गांव के बाहर की गंदी टॉयलेट की तरफ से एक आदमी लोटा लेकर आ रहा था। जब उसने महादेव भाई को देखा तो बोला, "उस तरफ ज्यादा गंदगी है, वहां सफाई करो।" यह देख बावला को बहुत हैरानी हुई और गुस्सा आया। उसने सोचा, गांव वाले तो यह समझ रहे हैं कि यह काम उनका नहीं बल्कि गांधी जी और उनके साथियों का है। यह बात ठीक नहीं है। इसलिए उसने गांधी जी से पूछा, तो गांधी जी ने बोला, "छुआछूत का भेदभाव या अनटचेबिलिटी कोई छोटी सी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। उसे मिटाने के लिए हमें हार्ड वर्क की ज़रूरत है।" नारायण ये जानता था कि ऐसा काम करने वालों को अछूत माना जाता है, पर वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उनके बदले अगर हम खुद यह काम करें तो हालात कैसे बदलेंगे। उसने पूछा, "अगर गांव वाले नहीं सुधरे तो क्या फायदा? उन्हें तो आदत हो गई है उनका गंदा काम कोई और ही करे।" गांधी जी बोले, "क्यों? इससे सफाई करने वालों को फायदा नहीं होता? क्या उन्हें सीख नहीं मिलती? कोई काम सीखना एक कला सीखने जैसा ही है, सफाई का काम भी।" छोटा नारायण फिर भी नहीं माना। वह फिर से बोला, "पर सीख तो उनको भी मिलनी चाहिए जो गंदगी करते हैं और खुद साफ नहीं करते।" इसी तरह एक जो
इसमें स्टोरी और दी है, इंसिडेंट वो दिया हुआ है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उनके बारे में। A childhood story. This story is almost 100 years old. 7-year-old Bhim went to Goregaon in Maharashtra with his father to spend his holidays. He saw a barber cutting the long hair of a rich farmer's buffalo. He thought of his own long hair. He went to the barber and asked for a haircut. The barber replied, "If I cut your hair, both my razor and I will get dirty." Oh, so to cut human hair can be dirtier than cutting an animal's hair, wondered little Bhim. Later, this little Bhim was known as Bhimrao Baba Sahib Ambedkar. He became very famous across the world. Baba Sahib fought for justice for people like him after India's freedom. The constitution was prepared under the leadership of बाबा साहेब। ये जो स्टोरी है यह लगभग 100 इयर्स पुरानी है। 7 इयर्स का छोटा सा भीम महाराष्ट्र के गोरेगांव में अपने फादर के साथ वेकेशन मनाने गया था। उसने देखा कि एक बार्बर किसी बड़े से फार्मर की बफेलो के खाल पर उगे लंबे लंबे हेयर को साफ कर रहा था। भीम को अचानक अपने बड़े हुए बालों का ख्याल आया। वो नाई के पास गए और अपना हेयर कट करने को कहा। तो जो बार्बर था वो जल्दी से बोल पड़ा, तुम्हारे बाल काटूंगा तो मैं और मेरा रेजर दोनों गंदे हो जाएंगे। तो जो भीम था उसने सोचा, क्या इंसान के बाल काटना भैंस के खाल साफ करने से ज़्यादा गंदा काम है? और आगे चलकर यही भीमराव यानी बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से दुनिया भर में फेमस हो गए। और बाबा साहेब ने अपने जैसे लोगों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ाई की। फ्रीडम के बाद बाबा साहेब ने ही हमारे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जो आज पूरे देश में चलता है। तो इस चैप्टर में जिसका नाम है हु विल डू दिस वर्क, इसमें हमने जाना कि जो बहुत सारे लोग होते हैं जो ये क्लीनिंग जॉब्स करते हैं, डर्टी वर्क करते हैं, उन्हें आज भी छुआछूत की भावना से देखा जाता है और कोई भी उनसे बात करना, उनके साथ बैठना पसंद नहीं करता है। गांधी जी यूज्ड टू से दैट एवरी पर्सन शुड डू एवरी काइंड ऑफ वर्क। गांधी जी ये कहते थे कि हर व्यक्ति को हर तरीके का काम करना चाहिए, चाहे वो कैसा ही काम क्यों ना हो। लेकिन अब समाज में थोड़ा सा बदलाव हो रहा है और लोग इन काम को और उनके काम करने वालों को समझ रहे हैं और छुआछूत की भावना थोड़ा कम हो रही है। हमें अपने समाज से जो अनटचेबिलिटी है उसको पूरी तरह से दूर करना है, तभी हमारा जो समाज है वो आगे बढ़ पाएगा और देश तरक्की कर पाएगा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।